بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو بے کا باب نمبر 4 پڑھیں گے، جو کہ اصلاح تلفظ سے متعلق ہے۔ آپ کے پیپر میں یہ سوال کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی فارم میں آتا ہے، جو غالباً 2 سے 3 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ نے درست تلفظ والے الفاظ کی نشاندہی کرنا ہوتی ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تلفظ کے معنی ہیں الفاظ کو زیر، زبر اور پیش کے لحاظ سے صحیح طرح ادا کرنا۔ اسی لیے الفاظ کا صحیح تلفظ سیکھنے کے لیے حرکات سے واقفیت ضروری ہے۔ حرکات ان علامات کو کہتے ہیں جو الفاظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے ان کے مختلف حروف پر لگائی جاتی ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے: زیر، زبر، پیش، جزم، شد یعنی تشدید، مد، کھڑی زبر اور کھڑی زیر، الٹی پیش اور تنوین وغیرہ۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سب علامات ہیں، حرکات ہیں۔ درست تلفظ کے لیے ان سب کی پہچان بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے عمل۔ غور سے دیکھیے، عمل۔ پہلے دونوں حروف مفتوح یعنی عین اور میم پر زبر ہے، یہ دونوں مفتوح ہیں، اور تیسرا جو حرف ہے لام وہ ساکن ہے۔ اسی کے وزن پہ یعنی اس سے ملتے جلتے الفاظ باقی ہیں غرض، مرض، بدن، بدل، ادب، ازل، بشر، حسد وغیرہ۔ باقی بھی کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، بیٹا آپ نے دھیان سے ان تمام الفاظ کو یاد کرنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ آگے ہے عقل۔ اس میں پہلا حرف مفتوح، دوسرا اور تیسرا جو ہے وہ ساکن ہے۔ اسی کے وزن پہ باقی الفاظ ہیں اصل، امن، امر، برق، ترک، جز، ضرب، حمد، وجد، صبر، صدر، نظم، نثر، اور یہ باقی کچھ الفاظ ہیں، ان کو بھی آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے اور عقل کے اعراب کے ساتھ اور اسی کے وزن پہ پڑھنا ہے۔ آگے ہے جسم۔ پہلا حرف مکسور ہے اور آخری دونوں حروف جو ہیں وہ ساکن ہیں۔ اسی طرح اسی سے ملتے جلتے الفاظ اسم، حرص، ذکر، علم، فکر وغیرہ۔ آگے ہے شکر۔ پہلا حرف مضموم یعنی پہلے پہ پیش ہے اور اگلے دونوں حروف جو ہیں وہ ساکن ہیں۔ اسی طرح حسن، حکم، ظلم، عذر وغیرہ۔ آگے ہے اخلاق۔ آپ نے غور کیا ہوگا، بلکہ آپ کا اپنا بھی تجربہ ہوگا، بہت سے لوگ اخلاق کو اخلاق بولتے ہیں اور اخلاق پڑھ جاتے ہیں، جبکہ درست تلفظ جو ہے وہ ہے اخلاق۔ اسی کے وزن پہ دوسرے الفاظ ہیں اخبار، اسلاف، اقسام، افواج وغیرہ۔ ان سب الفاظ کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے۔ آگے ہے امرا۔ یہ امیر کی جمع ہے اور اس کا پہلا حرف جو ہے وہ مضموم ہے اور دوسرا اور تیسرا جو ہے وہ مفتوح ہے، یعنی دوسرے اور تیسرے پہ زبر ہے۔ اسی طرح کچھ دوسرے الفاظ کی جمع بھی اسی اعراب پر ہوگی اور اس کا تلفظ بھی اسی سے ملتا جلتا ہوگا، جیسے علماء، غرباء، فقراء، شعراء، شہداء اور ادباء وغیرہ۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ آگے ہے مذاہب۔ مذاہب۔ پہلے دونوں حروف مفتوح، چوتھا مکسور۔ اسی طرح باقی الفاظ ہیں فوائد، قواعد، مقاصد، مساجد وغیرہ۔ باقی الفاظ بھی ہیں کچھ، ان سب کو آپ نے غور سے پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ اگلا لفظ ہے جلوس۔ جلوس۔
पहले दो हरूफ मजमूम यानी पहले दो हरूफ पे पेश है और बाकी दोनों साकिन है, सीन पे जज़म है। इसी के वज़न पे बाकी अल्फाज हैं खुलूस, वसूल, हुसूल, फजूल, उयूब वगैरह। और बाकी अल्फाज को भी आपने गौर से पढ़ना और याद करना है। आगे है आलिम। आलिम, इस आलिम का मतलब है इल्म वाला यानी जानने वाला। बहुत से लोग इसमें भी गलती करते हैं, आलिम और आलम में। आलम का मायने है आलम जिसके लाम पे ज़बर हो, उसका मायने है दुनिया। और आलिम जिसके लाम के नीचे ज़ेर हो यानी उसका लाम जो है वो मकसूर हो, तो उसका मायने बनता है इल्म वाला यानी जानने वाला। आलिम के वज़न पे बाकी अल्फाज हैं आखिर, ताजिर, बातिन, बाइस, साहिब, जाहिल, जानिब वगैरह। मुस्लिम, मुफलिस, मुखलिस, मुनसिफ, मुशफिक, मुजरिम, मुशरिक, मुश्किल, मोमिन, मुहसिन वगैरह। आगे है मुसाफिर। मुसाफिर पहला मजमूम, दूसरा मफ्तू और चौथा मकसूर है यानी फे के नीचे जेर है। इसी तरह मुहाफिज, मुवाफिक, मुखालिफ, मुजाहिद वगैरह। आपने तमाम अल्फाज को गौर से पढ़ना है और याद करना है। आगे है मुसव्विर। मुसव्विर पहला हर्फ मजमूम, दूसरा मफ्तू, तीसरा मुशद्दद यानी उस पे तशदीद है, शद है। और अगला हरफ यानी रे जो है वो साकिन है। इसी तरह मुबल्लिग, मुहक्किक, मुरव्विज, मुरत्तिब वगैरह। आगे है हिसाब, बिसात, किताब, इलाज, मिजाज, जिहाद, खिलाफ, फिराक, विसाल, क़ियाम, निकात वगैरह। आगे है मुख्तलिफ। मुख्तलिफ पहला मजमूम, दूसरा साकिन, तीसरा मफ्तूह और चौथा जो है वो मकसूर है और पांचवा साकिन। जैसे मुख्तलिफ, मुतारिज, मुश्ताइल, मुंतजिर। मुंतजिर, इस मुंतजिर का मानी है इंतज़ार करने वाला। मुंतजिर का मानी है इंतज़ार करने वाला। मुल्तमिस, मुतकिद, मुंतशिर और मुतारिफ वगैरह। आगे है मुअत्तर। मुअत्तर पहला मजमूम है, दूसरा मफ्तू, तीसरा मुशद्दद मफ्तू यानी इसके ऊपर तशदीद भी है और ज़बर भी। इसे कहेंगे मुशद्दद भी है ये और मफ्तू भी है, मुशद्दद मफ्तू। और रे जो है वो साकिन है। इसी तरह मुहम्मद, मुकर्रम, मुफस्सल, मुकद्दर, मुसल्लस वगैरह। स्टूडेंट्स याद रहे आपके सितंबर टेस्ट होने वाले हैं और सितंबर टेस्ट के सिलेबस में अमल से लेके तआवुन तक आपके इराब शामिल किए गए हैं। आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है उसका पहला हरफ है अमल और आपने पढ़ना है आगे तआवुन तक। और इनके तमाम जितने हरूफ इनमें आते हैं, जितने अल्फाज आते हैं, इन सब के तलफ़्फ़ुज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आप टेस्ट में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को लिख सकें। आगे है महबूब। महबूब पहला मफ्तू, दूसरा साकिन, तीसरा मजमूम। जैसे मगलूब, मफ्तूह, मजरूह वगैरह। बाकी अल्फाज को भी आपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है और ज़हन नशी करना है। आगे है मुहतरम। मुहतरम पहला मजमूम है, दूसरा साकिन, तीसरा और चौथा मफ्तू। इसी तरह मुख्तसर और मुंतज़र। ये देखिए बच्चों यहाँ लफ्ज़ आया है मुंतज़र। यहाँ आप इस तरह परेशान हो जाते हैं और मुश्किल महसूस करते हैं कि वहाँ मुंतज़िर इसका तलफ़्फ़ुज़ है और यहाँ मुंतज़र, ये क्या है। और यहाँ देखें अरबी अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ जो है उसका एक ही अलामत के फ़र्क के साथ उसका मायने जो है और उसका मफ़हूम जो है वो तब्दील हो जाता है। जैसे उधर मुंतज़िर है, मुंतज़िर का मायने है इंतज़ार करने वाला,
और यहाँ मुंतज़र है, और मुंतज़र का मायने है इंतज़ार किया गया, यानी जिसका इंतज़ार किया जाए। आगे है मिराज, मिहराब, मिनकार, मिजराब, मिकराज, मिफ्ता, मिसबाह वगैरह। आगे है मंजिल, इसी तरह मस्जिद, मगरिब, महमिल और मजलिस, ये इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं, इन सब का तलफ़ुज़ जो है वो सेम है। आगे है मदरसा, यानी पहला मफ्तू है, दूसरा साकिन, तीसरा और चौथा मफ्तू। इसी तरह मशगला, मकबरा, मशवरा और मसअला। आगे है अफजल, पहला मफ्तू, दूसरा साकिन, तीसरा मफ्तू, जैसे अकबर, मरकज, मसदर, मकतब, मतला, मक्ता वगैरह। अगले पेज पे चलिए, ये हमारा सबक जो है ताउन तक हमने पढ़ना है। आगे पहला लफ्ज़ है इस्लाम, इस्लाम पहला मकसूर, दूसरा साकिन, तीसरा मफ्तू। इसी तरह इखलास, एहसास, एहसान, इकबाल, इंसाफ, इदराक, इनाम, इरशाद, इरसाल, इस्लाह, इजहार, इराक, एजाज, इकरार वगैरह। बाकी अल्फाज को भी आपने और से पढ़ना है और याद करना है। आगे है एतबार, एतबार पहला मकसूर, दूसरा साकिन, तीसरा मकसूर, चौथा मफ्तू, जैसे एहतराम, इज्तनाब। गौर से देखिए और पढ़िए, इनको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन अल्फाज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और पेपर में भी अक्सर इन्हीं में से आ जाते हैं, इसलिए तवज्जो से इनको पढ़िएगा और याद करिएगा। इज्तिनाब, इब्तिदा, इंतहा, इख्तिताम, इख्तिसार, इख्तिलाफ, इश्तिहार, एतराज़, एतदाल, एतराफ़, एतकाद वगैरह। बाकी अल्फाज को भी याद कर लीजिएगा। आगे है इत्तेहाद, पहला मकसूर, दूसरा मुशद्दद मकसूर, यानी उसके ऊपर शद भी है, उसके नीचे उसके ऊपर शद भी है और नीचे ज़ेर भी है। इसी तरह इत्तिफाक और इत्तिलाफ। आगे है तरन्नुम, पहला और दूसरा मफ्तू, तीसरा मुशद्दद मज़मूम, यानी इसके ऊपर शद भी है और पेश भी है। इसी तरह तखल्लुस, तहम्मुल, तदब्बुर, तबस्सुम वगैरह। ताज़ीम, इसमें पहला मफ्तू, तीसरा मकसूर, जैसे तशरीह, तशरीह, तकरीर, तशदीद, तशरीफ, तशवीश, तस्दीक वगैरह। और हमारा जो मुकर्रर करदा सिलेबस है फर्स्ट टर्म का या फिर मंथली टेस्ट का सिलेबस, उसका आखिरी लफ्ज़ है ताउन। ताउन पहला और दूसरा मफ्तू, चौथा मज़मूम, जैसे तगाफुल, तारुफ, तसादुम, तफावुत, तदारुक, तनावुल वगैरह। हमारा आज का एराब से मुतल्लिक जो सबक था वो इख्तिताम पज़ीर होता है। अज़ीज़ तलबा, याद रखिए, एक नंबर भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। गो कि ये 2 से 3 नंबरों का क्वेश्चन होता है और वो भी MCQs की फॉर्म में आता है, लेकिन एक नंबर की आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एक ही नंबर से तालिब इल्म पोजीशन भी ले सकता है, फर्स्ट भी आ सकता है और एक ही नंबर से फेल भी हो सकता है। इसलिए 1-2 नंबरों को हकीर या मामूली मत समझें और जिस तरह आप अपना बाकी पेपर तैयार करते हैं, इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें भी पूरी तवज्जो और ध्यान से तैयार करें और ज़हन नशीं करें। इसी के साथ हमारा सबक इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह हाफिज़।